हेलो एवरीवन। वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जान चुके थे। अब हमें क्या है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ let's start. In this section we are going to study rational and irrational number from a different point of view. We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between rational and irrational. मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिस्टिंग्विश हम लोग दशमलव के तौर पे करेंगे. We will also explain how to visualize the representation of real number on number line using the decimal expansion. Since rationals are more familiar to us, let's us start with them. Let us take 3 example: 13/3, 7/8, 1/7. Pay special attention to remainder and see if you can find any pattern. Now, अब हम लोग 10 में 3 से भाग देंगे, मतलब 10/3 को. तो यहाँ से हमें जो भागफल आएगा 3.3333 करता हुआ आएगा. जबकि 8 से जब 7/8 है तो 8 से जब 7 में भाग देंगे तो यहाँ पे 0.875 में आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर हर बार 1 आता जा रहा है. नेक्स्ट में अगर हम 7 से 1 में भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे आता है 1. रिमाइंडर यहाँ पे अगर देखिए तो कितनी बार आ रहा है 1 1 1 1 और लगातार आते जा रहा है, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर खत्म हो जा रहा है. यहाँ रिमाइंडर मतलब यहाँ पे देखिए तो रिमाइंडर एक रिपीटेशन अलाउड हो रहा है. यहाँ पे देखिए तो 326451 326451 मतलब इस तरह से रिपीट हो रहा है. यहाँ 1 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है. What you have noticed, you should have noticed at least 3 things. First, remainder either become 0 after a certain stage or start repeating themselves. Okay, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, चाहे यहाँ पे रिपीट कर रहा है रिमाइंडर, यहाँ भी एक रिपीट कर रहा है. The number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisor. जो रिमाइंडर है वो डिविजर से हमेशा कम बच रहा है, ये नॉर्मल सी बात है. इन 10/3 1 number repeat itself and divisor is 3, and in 1/7 there are 6 entries 3 2 6 4 5 1 in the repeating string of remainder 7, and 7 is divisor. If the remainder repeat, then we a repeating block of digit in the quotient. For 10/3, 3 repeats in the quotient, and 1/7 we get repeating a block in the quotient. Although we have noticed this pattern using only the example above, it is true for all rational of the form p by q, q is not equal to 0. On division of p by q, two main things happen. Either the remainder becomes 0 or never becomes 0, and we get repeating string of remainder. Let us look at each case separately. Case number 1, the remainder becomes 0. In the example 7/8, we found that the remainder becomes 0 after some steps, and the decimal expansion of 7/8 is equals to 0.875. Other example 1/2 is equals to 0.5. Other example 639/250 is equals to 2.556. In all these cases, the decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps. We call the decimal expansion of such number terminating. मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है. ओके. केस नंबर 2,
the remainder never becomes 0. In the example of 10 upon 3 and 1 upon 7, we notice that the remainder repeats after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever. In the other words, we have a repeating block of digits in the quotient. We say that this expression is non-terminating. क्या है इसका जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं भी जीरो नहीं आ रहा है. इसका भी रिपीटिंग हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग कितना का हो रहा है? 14257, फिर से 142857, 142857. इस ब्लॉक का रिपीटिशन हो रहा है. The usual way of showing 3 repeats in the quotient 10 upon 3 is to write it as 3.3 के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं. ठीक है, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. और कौन सा रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है. सिमिलरली द ब्लॉक ऑफ डिजिट 142 repeats in the quotient of 1/7. We write 1/7 as 0.142857, where the bar above the digit indicates the block of digits that repeats also. 3.57272 can be written as 3.5727, 3.572. So all these example gives us non-terminating, recurring या रिपीटिंग. इसको बार भी कहेंगे और हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय रिकरिंग भी इसको कहा जाता था. ठीक है, रिकरिंग वर्ड से इसको हम लोग करते थे. उस समय रिकरिंग समझ में नहीं आता था कि आखिर रिकरिंग क्यों कहते हैं. रिकरिंग का मतलब होता है जैसे कि अकर्स, उसमें हम लगा देंगे तो री अकर्स, तो मतलब लगातार ये वहां पे आ रहा है तो इसलिए इसे री अकर्स, तो इसी को री अकरिंग कह देते हैं. Thus we see that the decimal expansion of rational number have only two choices. Either they are terminating or non-terminating recurring. मतलब रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी कब हो? नॉन टर्मिनेटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसमें क्या होना चाहिए? रेकरिंग होना चाहिए, रीअकरिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए. नेक्स्ट है, we will not prove it but illustrate this fact this with a few examples. The terminating cases are easy. Example number 6 है, so that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equals to 0. तो क्या करेंगे यहाँ पे 3.142678 को करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम 0 लगाएंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हेंस इज अ रेशनल नंबर. नाउ लेट्स कंसीडर इन द केस व्हेन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट 0.3333 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0.3 बार 3 के ऊपर रिकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. सिंस वी डू नॉट नो व्हाट 0.3 के ऊपर बार इज, लेट अस कॉल इट x एंड सो ऑन. x बराबर 0.3333, इसको ले लेंगे. नाउ हियर इज वेयर द ट्रिक कम्स इन. लुक्स एट, सबसे पहले इसमें दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 0.3333, तो यहाँ पे 3.33 आ जाएगा.
नाउ अब क्या कर देंगे, ये जो 3.33 है इसको हम अलग अलग करेंगे। तो 3.33 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स, क्योंकि x क्या है, इतना है, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा। सिंस x इक्वल्स टू इतना, तो यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर 3, दैट्स ऑल, 1/3 आ जाएगा। मतलब इसको सिंपली करो, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, आप दोनों साइड 10 से गुना कर दो, 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे क्या कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब इतना में से इतना घटा देना, तो यहाँ पे 9x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9, जो कि 1/3 के बराबर है। इस तरह से हम इसको p/q के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो दैट 1.272727 मतलब 1.27 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ pq। क्या किया है, x इक्वल्स टू इतना मान लिया है, सिंस 2 डिजिट आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई बाय 100, जहाँ 2 डिजिट रिपीट करेगा वहाँ 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर दिए। कैसे कर सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 1.27, 100x इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे x इक्वल्स टू इतना है, तो 100x इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। अब क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 126 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू 126/99 हो जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है, लेट x इक्वल्स टू 0.235 ओवर हियर, नोट दैट 2 डज नॉट रिपीट बट द ब्लॉक 35 रिपीट, सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग बी मल्टीप्लाई इट बाई 100, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 23.5353, इस तरह से हो जाएगा, जैसे वहाँ पे किए थे सेम तरह से यहाँ कर देंगे। यू कैन ऑल्सो चेक द रिवर्स, ओके। नाउ the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring, हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। The decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or not terminating recurring is rational number. So now we know what the decimal expansion of rational number can. What about the decimal expansion of irrational number? Because of the property above, we conclude that their decimal expansion are non-terminating, non-recurring. मतलब irrational का क्या होगा, non-terminating होगा और non-recurring होगा. So the property of irrational number, similar to the property stated above for the rational number, is the decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. ठीक है, हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट कर देंगे। नाउ रिकॉल, एस से हम किसको डिनोट करते थे, एस से हम डिनोट करते थे इरेशनल नंबर को, इरेशनल। रिकॉल एस इज इक्वल्स टू 0.101101101110 from the previous section. Notice that it is non-terminating and non-recurring. कोई यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई एक
फॉर्म नहीं मिल रहा है जिसके हिसाब से रिपीटेशन। देयरफॉर फ्रॉम द प्रॉपर्टी अबव इट इज इरेशनल। मोreover notice that you can generate infinitely many irrational similar to s. What about the famous irrational root 2 and 5 pi? ये सबसे फेमस इरेशनल्स है। Here are their decimal expansion up to certain stage. Root 2 is equals to 1.4142135730950488016887242096। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। पाई में भी ये है 3.14159265358979323846 मतलब ये कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है। नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7 as an approximate value of pi, but pi is not equal to 22/7. Over the years, mathematicians have developed various techniques to produce more and more digits in decimal expansion of irrational number. For example, you might have learned to find digit in decimal expansion of root 2 by division method. Interestingly, in the Salbasutra rules of code, a mathematical treatise of Vedic period 800 BC to 500 BC, you find an approximation of root 2 as follows. Root 2 is equals to 1 plus 1/3 plus 1/4 into 1/3 plus 1/34 into 1/4 into 1/3. It's equals to 1.4142156. Notice that it is same as one given above the first 5 decimal places. The history of hunt for digit in decimal expansion of pi is very interesting. Archimedes. The Greek genius Archimedes was the first to compute digit in decimal expansion of pi. He saw 3.110845 is less than pi and is less than pi and 3.142857 1.42. Aryabhatta 476 to 550 CE. The great Indian mathematical and astronomer found the value of pi correct to 4 decimal 3.1416. Aryabhatta. Using high-speed computers and advanced algorithm, pi has been computed to over 1.24 trillion decimal places. Now let us see how to obtain irrational number. Example number 10. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. We saw that 1/7 is equals to 0.142857, repeating. So you can easily calculate 2/7. Okay. To find an irrational number between 1/7 and 2/7, we find a number which is non-terminating, non-recurring, lying between them. Of course, you can find infinitely many such numbers. An example of such example is 1.150, 1500, 15000. इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम आज डेसिमल के माध्यम से क्या क्या पढ़े इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल में क्या था कि या तो टर्मिनेटिंग, नहीं इरेशनल नहीं, इरेशनल और रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। रेशनल नंबर था या तो टर्मिनेटिंग था, डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेटिंग था, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के साथ। जबकि इरेशनल नंबर क्या था,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। फर्स्ट है 36/100, इसको अगर हम करें तो ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, इसको भाग करके देख लेंगे, 100 से भाग देंगे कितना में, 36 में। यहाँ पे पॉइंट मतलब 0, 3 टाइम्स 300, 6 टाइम्स, इस तरह से हमारे पास आ गया 0.66। मतलब रिमाइंडर जो बच रहा है 0 बच रहा है। इस हिसाब से क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कैसा है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम करते हैं 1/11 का। 11 से अगर हम 1 में डिवीजन करते हैं इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद ये 0 हो जाएगा। अब ये नहीं हुआ तो एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा। 9 टाइम्स 99, फिर से 01। अब क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 00 उतरेगा। 9 टाइम्स 99, 1, फिर 0, 00, 9 टाइम्स 99। मतलब कि क्या आ रहा है इसका, 0.090909 और इसी तरह से रिपीट कर रहा है। इट मीन्स 0.09 यहाँ पे हम लोग रिकरिंग लगा सकते हैं। अब इसको कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09090909, इस तरह से रिपीटेड होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे रिकरिंग। तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4/1/8। इंटीजर 4 है और फ्रैक्शन है 1/8। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 8 चौका 32 से 33/8, 33/8। अब 8 से 33 में हम भाग देंगे, कितना आएगा, 8 चौका 32, रिमाइंडर 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0, 1 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 5। 8 मीन्स इसका आंसर हो गया 4.125। मतलब कि लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया, 4.125। नेक्स्ट है 3/13। अब इसको करेंगे 3/13 को, तो भाग दे के देखते हैं। 13 में 3 से 3 चौका 12, रिमाइंडर 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे, 0, 3 तिहाई 9, रिमाइंडर 1, फिर से 0, 3, 9, 1, 0, 3 और इस तरह से ये रिपीट करता हुआ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4.3333
डॉट 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 डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं रेकरिंग की तरफ 4.3 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब रेकरिंग आ जाएगा। फोर पॉइंट थ्री के ऊपर बार। अब है 2/11। 2 में 11 से भाग देते हैं, 0.01 टाइम्स, दिस इज 9, रिमाइंडर यहाँ 9 हो गया, 0, 8, 88, 2, 0, 1, 11, 9, 0, 8 टाइम्स 88, 2, मतलब इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/11 की 0.181818 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है 18 रिपीट हो रहा है 0.18। आगे है 329/400। 400 से 329 में भाग देंगे, 0.0, 4×8 32, 8 टाइम्स 3200, 90 यहाँ पे आ गया, फिर एक 0 लगेगा, 4 दूनी 800, 1000, उसके बाद 4 दूनी 800, 2000, फिर 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 5 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 0.8225। इसकी वैल्यू आएगी 0.8225। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग। ये रेकरिंग वाला है, ये भी रेकरिंग वाला हो गया, टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सारे को मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2. You know that 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7 or 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? If so, how? कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं कैसे आ रहा है। 7 से 1 में भाग देते हैं तो कैसे आ रहा है? 0.01730 4 28 202 6 8 56 4
5 5 0 7 टाइम्स 49 और फिर से ये 1 आ गया और यहाँ से हमने इसको डेक्रिंग कर दिया। तो अगर 2/7 की बात तो क्या कर सकते हैं, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.14287 के ऊपर रेकरिंग लग जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 0 क्या हो जाएगा 0.285714। इस तरह से हो जाएगा। इसको करके भी देख लेते हैं क्या ऐसा आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 7 से 2 में भाग देंगे, 7 से 2 में, 7 से 2 में भाग देते हैं। पॉइंट 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 फिर से सेम आ गया। तो इट मीन्स यहाँ तक ये रिपीटेशन होगा। तो इस तरह से हम जान गए कि कैसे हो सकता है, सीधे गुना कर देना। तो हमारे पास है दूसरा 2/7 हो गया। 3/7 में क्या हो जाएगा, 3/7 को अगर लिखना चाहे 3/7 को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3/7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू थी 0.142857 142,857 के ऊपर रेकरिंग। तो यहाँ से 3 से सिर्फ मल्टीपल कर देंगे 0.7321, 5 3 15 1 16, 8 3 24 1 25, 3 दूनी 6 1, 3 6 2 8, 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4। इस पर रेकरिंग कर देंगे। उसी तरह 4/7 की बात होगी, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857 यहाँ से आ जाएगा 7 चौका 28, 5 चौका 20 2 22, 8 चौका 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 0.57 इसका रेकरिंग हो जाएगा। इसी तरह 5/7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.142857 के ऊपर रेकरिंग गुना कर देंगे। 7 5 35, 50 25 3 28, 8 5 40 2 42, 5 दूनी 10 4 14, 5 का 20, 1 21, 5 एकम 5 2 7 ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। इसी तरह से 6/7 भी आ जाएगा।
6/7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, 7 छक 42, 6 पचे 30 4 34, 8 छक 48 3 51, 6 दूनी 12 5 17, 6 चौका 24, 1 25, 6 कम 6 2 8, 0.85 इतना। आगे बढ़ेंगे, 7/7 करें तो सीधे ये 1 ही हो जाता है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 1/7 क्या होता है इसमें देखते हैं हम। 7 इंटू 0.142857, यहाँ से हो जाएगा 7 7 49, 7 5 35 4 39, 7 8 56 3 59, 7 दूनी 14 5 19, 7 चौका 28 1 29, 7 एकम 7 2 9, 0.9999 होता जाएगा। और ये भी रिकरिंग, समझे? ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा कितना, ये चूंकि अगर रेकरिंग है तो ये लगातार रिपीट, मतलब इतना नहीं, 0.9 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा और ये 1 के बराबर कहलाएगा, इसलिए 7/7 इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब अगर 8/7 करते हैं कैसे होगा, 8 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा, 1.5 करने की आवश्यकता नहीं, सेम चीज रिपीटेड होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q and p and q are integer and q is not equal to 0। करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 3। जीरो पॉइंट 6 का ऊपर बार 8 मीन्स 0.666666 ऐसा रिपीटेड होने लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर रिकरिंग लेट, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब इसमें क्या है, एक रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, तो 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस लगा देंगे, नहीं यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस ऊपर वाले में लगेगा। अगर इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट, नीचे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस, यहाँ से हो जाएंगे 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट है 0.47। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.47 एंड 7 के ऊपर है रिकरिंग, तो इसे हम लेट
x इज इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार। तो इसको अगर लिखना चाहे इक्वेशन 2, ना इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट कर देंगे, माइनस फर्स्ट यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन 2 10x इज इक्वल्स टू 4.7 को लिख सकते हैं 4.777 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमें 4.3 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4.3 अपॉन 9, दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 10, 43 अपॉन 90। तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 0.001 के ऊपर 0.001 के ऊपर 3 के ऊपर है बार, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 मानेंगे। तो इसको अगर हम 0.001 डॉट 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 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तीनों पे रेकरिंग है, 1 2 3 तीनों पे रेकरिंग है, तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो 1000 से गुना कर दिया, यहाँ 1000 x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1.001,001। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और ये पहले वाला इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमें 1000 माइनस 1 इक्वल्स टू 999x, इतना में से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/999। नाउ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 in the form are you surprised by your answer with your teacher in class में discuss why the answer makes sense। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 0.99999, ये क्या हो गया, एक तरह से रिपीटिंग होता जा रहा है, तो इसके ऊपर 0 पॉइंट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब रेकरिंग है, रिपीटिंग है, तो नीचे इसको दशमलव तोड़ के हम नीचे 1000 ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, एक पे रेकरिंग है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.9999। सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कौन सा क्वेश्चन, 1/7 वाला, यहाँ पे हमने किया था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस तरह से किया था, और लास्ट हमने लिया था 7/7, जिसकी वैल्यू सीधे सीधे हम जानते हैं 1 है, लेकिन उसको हम 7 इंटू 1/7 का करके देखे थे, तो हमें इसी तरह से आया था 0.99999, जो क्या है 1 के बराबर है। नेक्स्ट 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है
9 क्वेश्चंस। और काफ़ी इस वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।